कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए जो बाहर सेटल्ड हो। मैंने कहा ठीक है जी, आप क्या करते हैं? बोले मैं तो कुछ नहीं करते। मैंने कहा तुम खुद क्यों कुछ नहीं करते? बोले कि इसीलिए तो मैं शादी कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ना करना पड़े। अब ऐसे लोगों की मैं कैसे शादी करा दूं? ऐसे लोगों की भगवान शिव भी शादी नहीं करा सकते भाई। Hey guys, hello and welcome to another episode of the Free Spoken podcast. I am your host Sanat, and today we have with us Vishal Bhardwaj. Now Vishal is the co-founder of Predictions for Success. He's a motivational TEDx speaker and he possesses great knowledge about astrology, Vastu Shastra and related sciences. So hi Vishal, how are you doing? Thank you so much, Sanat, and I am doing very great. I hope you and the audience is doing very great as well. And thank you for being let me be a part of this show, and I'm sure that I would be able to give something for the audience. I am pretty sure about that. With the knowledge that you possess, I'm pretty sure कि आप audience को rightly guide कर पाओगे. So let's get straight to it. कि सबसे पहली चीज that I wanted to know and what we were discussing earlier with my team was कि when we say astrology, एस्ट्रोलॉजी सुनते ही सबसे पहली चीज जो एक यंग पर्सन के या फिर अप टू आई वुड से मिलेनियल एज के पर्सन के दिमाग में जाती है वो होती है ज़ोडिएक साइंस एंड सन साइंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट यू टू टेल अस एंड द ऑडियंस कि इसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके बिना आप 100% जज ही नहीं कर सकते कुछ भी. Yeah, Sanat. So it's a very good question, Sanat, and this is a kind of a very basic question that we hear a lot of times from even our families as well. So to answer that, let me ask you a back question. So जब आप math सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? I'm sure numbers and addition and subtraction, right? But there are many other things in mathematics that is additional to that, right? So same happens in case of astrology. The zodiac sign is one of the basic things that is part of astrology. उसके अलावा बहुत कुछ होता है. There is moon sign, there is your degree of charts, there is degree of your planets, which planet is in good shape, which is not. So there are many other factors. And in fact, when we go for a personal horoscope, I mean, like when I study your chart, so zodiac sign is not that much important to me. So for Vedic astrologers, especially Indian astrologers, it is the moon sign that we give more importance rather than this sun sign. I see. So इसके अलावा there are various factors और practically हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ zodiac signs की जो predictions या जो horoscope हमें daily मिल जाता है Instagram and such applications पे उसे हम 100% true नहीं मान सकते without considering all the other factors involved. हाँ, बिल्कुल सही कहा सनत आपने. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आपको थोड़ा सा फीवर है इन नॉर्मल सिनेरियोज और थोड़ा सा अगर आपको सर्दी रहता है तो आप फटाफट बोल देते हैं कि यार हो सकता है मेरे को जुकाम हो गया एंड इट कुड बी अ वायरल फीवर, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच अ ज़ोडिएक साइन इज. सो ये बहुत बेसिक सी आपको एक हिंट देते हैं. For example, if you are a Leo sign, that means that you have a lot of energy in you. So, but it doesn't mean that every Leo sign is energetic. It simply means that, I mean, like if all factors are general, if there is no other complication involved, if we say that everything is as normal as it could be, so in those scenarios, Leos are more energetic than other sun signs. I see. Understand? So, in an ideal scenario, एक commerce की term होती है, ideal market conditions में ये चीज डोमिनेट कर सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता. उसके अलावा बहुत नहीं हो सकता. फेयर इनफ. नाउ वन मेजर थिंग विशाल जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आई बिलीव हमेशा से रहा है लोगों के दिमाग में, इज इट समथिंग मैजिकल और पैरानॉर्मल और इज इट समथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ साइंस समवेयर और द अदर? Great. So सनद, इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा. उसके लिए आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ. आप एक सी शोर पे क्यों जाते हैं सनद? फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू अ बीच, सो व्हाई यू वांट टू गो टू अ बीच? Well, to relax, to probably enjoy, take a day off from the daily life. Yeah. But this is not the case for all. So many people go to seashores, maybe to find pearls. So there are people who just go to go for a walk, a morning walk. There are people who go for a kind of making a living out of fishing and all. So everybody has a different purpose. So it is not just the astrologer that has a particular mindset about what astrology is. It is more of the client that come to us. So many of the client that come to us has a particular mindset. So for example, for them it is a magic.
Okay, I see. so no matter what we say, so they will think that it's kind of a magic for them. Okay, Right. and but personally, if you talk about me, if you talk about prediction for success, me and Shweta both are engineers, and we totally believe in logic, not magic. Right. So for us, it is absolutely mathematical and combined with a little bit of psychology. So nothing more, nothing less. So we don't have any magic pills. So if someone comes to us and say that, can you get me a job? So I will simply say, no, I cannot get you a job, but I can help you get a job by boosting your confidence. I can help you get a job by telling you that, when you should give your best. And if it is not a very good time, then you should relax a bit. You should hold your breath so that when the time comes, you can hit very hard. Right. So practically, it is a mix of science, psychology, some maths, but it is definitely nothing paranormal that cannot be expressed, in normal terms. That's correct. That's correct. But saying that, let me show you something, Sanath. Can you see that this diagram? Yeah, we can. So it's A, it's B, it's C. So it's a pie chart. So Right. A, B, and the bigger part is C. Okay. Right. So what is A? So A here is the things that you know, Sanad. The things that we Okay. know. That okay, I know mathematics, I know science, I know this, sociology and all. Mhm. B is what we don't know. So I don't know. For example, I don't know about aeronautical engineering. I don't know about mechanical engineering. I don't know about journalism. So these are B. What is C? C are the things that you don't know that you don't know. Understanding Okay. those factors that you have never even heard of. So you don't even know about that these factors exist. So this is something that you don't know that even exists. Understand? Right. So in very general terms, what we do is we say that it's either E, A, or it's either B. But in a very practical sense, in the scientific terms, in scientific terms or science, when said, it says in three terms: possible, not possible, may or may not possible. Right. Okay. So for me, it is absolutely mathematical. It's absolutely a science. But there are things that I might know, don't know. For example, there is sadhana. There is a spiritual awakening that people do, and the yogis that used to do. And these are something that science don't have answers to. But it doesn't mean that science is saying that or discarding this. Because the basic fundamental of science is to open the ears, is to stay open to new ideas. So if science is not open to stay for new ideas, it is not science. For example, in 1800s, if someone would have said that we can fly by airplane, so most of them said it's not possible. It's not possible. So it does, yeah. So it doesn't mean that it won't exist or it is not existing. So we are still now flying in air. So I think this answers a lot. So as a science student or as a science scholar, any kind of scholar, you have to be open for new opportunities or new learning. Right. So I think this is true for astrology. True for even astrology. No, that's very fair. Ki we can never restrict it to science. Yeah, there might be things that we are not aware of that might be influencing such factors, right? The things that you are calculating, you calculate what they are. If I am right, just correct me if I'm wrong. You calculate what they are, but you can never ascertain how they reach there. So these are factors that so true. you don't know about. That's very fair, and that's a very honest answer, I would say. जो आज की डेट में एक एस्ट्रोलॉजर जो टर्म बन गई है, which has been associated with a lot of dogma, लोग आंसर नहीं करना चाहते because they are like कि अरे बता देंगे तो सब खत्म हो जाएगा. नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हर चीज का आंसर पॉसिबल नहीं है. कारण क्या है सनत, जब हमने स्टडी किया व्हेन आई डिड माय सर्टिफिकेशंस, सो बहुत सारा नॉलेज तो देखो जो हमारे सीनियर जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने पास ही नहीं किया. फ्रैंकली स्पीकिंग, वो सोचते थे कि उनके बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हीं को सिखाएंगे और किसी और को सिखाते नहीं है वो. दूसरी चीज जो इन्वेजन हुआ, जब मुगल इन्वेजन हुआ उस टाइम पे हमारे बहुत सारा डेटाबेस, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स, बहुत सारी बुक्स डिस्ट्रॉय कर दी गई. तो उसके जब वो चली गई तो अब हमारे पास कड़ियां हैं जो मतलब आज का न्यू जनरेशन जो एस्ट्रोलॉजर है वो उन कड़ियों को सिर्फ जोड़ता रहता है. और स्पेसिफिकली फॉर अस व्हाट वी वांट टू प्रिजर्व इट. सो व्हाट वी डू इज व्हाटएवर वी आर लर्निंग, व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर ओन expertise, we are trying to spread that to others as well. So we want people, we want students to come forward into this field and learn from us or learn from anyone so that this particular thing is preserved.
I see. No, that's really good. Now there is one more question that comes in from the social media aspect again. कि as I said earlier, social media पे बहुत सारी posts circulate होती रहती हैं. You know, you are intelligent, signs that are intelligent. Then they list down the entire signs and they'll give their percentages. कि some people are like 10,000% intelligent. You know, some millennials and people watching this. आप लोग कई बार क्या करते हो? You guys go ahead and उसमें लिखा होता है love meter of signs. एंड देयर लाइक कि अच्छा लियो एंड इसका तो कंपैटिबिलिटी अच्छा होता है, सो लेट्स फाइंड अ पार्टनर इनटू दिस. और हमारे पार्टनर से हमारी लड़ाई क्यों हो रही है? बिकॉज इंस्टाग्राम पे इस पोस्ट में लिखा था कि वी आर नॉट कंपैटिबल. सो ये पोस्ट आई एम प्रीटी श्योर आपने भी एनकाउंटर करी होंगी. सो एनकाउंटर भी की है और समटाइम्स सनद लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, हमने खुद भी पोस्ट किया है. राइट. हम खुद कई बार मतलब इतना नहीं कि मतलब फॉर फन फैक्टर्स sometimes what we do is, you know, what is your maturity level? For example, it was a recent post that one of our editor posted. What is your maturity level? Okay, so what we do is we see how much stable or patient a particular sun sign is. Then according to that, we create something like that. So that is one different thing because we are the expert. We are saying, of course. Okay. Now comes the second part. The second part, which is actually a very important part, that most of the pages that you see that post these kind of things, they don't even know about astrology. That's right. So they are simply doing it for the content marketing, man. Right. For example, it is as simple as Snapchat or something that has some filters or making your dog face, right? So it doesn't do anything in practicality. So it is as good as that only. So it is just for the fun. I mean, like you read it for the fun, you comment it for the fun, you tag your friend for the fun, but nothing much. For most of the cases that I see, and even sometimes we post it because it is kind of that something attracts to astrology. If we don't post this, if we say, for example, if we keep posting, we post. So if we keep posting things about advanced astrology, for example, we tell about degrees and ascendant, descendants. So people will not be very attracted to those. To attract those, for example, जैसा बच्चों को करते हैं ना सनद कि छोटा कैंडी देते फिर उसको बाद बोलते कि एक सम को सोल्व करो तो वो कर देते हैं. तो यही है, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है कि एस्ट्रोलॉजी का ये कंपैटिबिलिटी एंड ऑल, ये कैंडीज है. It is just to attract your eyes toward the main purpose of this page. But that's good on your end क्योंकि आप expert हो. And you can validate if any day somebody comes up and tells कि how can you say this, so you can always validate. नहीं, हम तो बल्कि सबको बोलते भी है शरद, हमारा जो भी लाइव वीडियो कॉल्स होता है उसमें हम सबको बोलते हैं कि भाई इनके ऊपर कोई लड़ाई वड़ाई मत करो कि मतलब जैसा आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि कंपैटिबिलिटी लियो का एरीज के साथ नहीं है. कंपैटिबिलिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट हैज वेरी मच complex than what you even think of. So जब compatibility check करते हैं तो we check in psychological terms what we check is कि both are compatible in terms. For example, let me give you an example. अभी एक आपका पार्टनर है, okay? तो वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और आप भी उतने ही ज्यादा गुस्से वाले हैं. तो कंपैटिबिलिटी देखो, एक बार अट्रैक्शन तो होएगा. कारण क्या है कि दोनों को एक बार तो पसंद आओगे कि भाई देखो कितना बोल्ड है, वो भी बोलेगी देखो कितना बोल्ड है ना. लेकिन जब लॉन्ग टर्म में उसको रहना शुरू करोगे ना तो एक दूसरे से भी लड़ोगे, राइट. सो कंपैटिबिलिटी मींस टीचिंग बोथ ऑफ देम हाउ टू लिव टुगेदर इवन विद योर फ्लॉज. So how to understand each other flaws. So अगर for example मेरे को आपका पता है कि आपका गुस्सा जल्दी खत्म हो जाता है. For example आप अभी गुस्सा होगे, बॉम्ब की तरफ फटोगे, उसके बाद शांत हो जाओगे, तो मैं आपको बोलूंगा सनद do one thing whenever you are angry, do this kind of thing. For example take a sip of water before speaking and anything else. So these are kind of remedies that we do which are absolutely psychological and scientific, not like कि पूजा कर लो और ये मंत्र पढ़ो, ये तंत्र ले लो, ये कुछ जो भी आप you know it. I know I completely get it. ऐसा कुछ नहीं करते. और बॉस इसमें एक और चीज आती है कि ये आपने जो फैक्टर बताया क्या होता है, मंथ से मुझे कनेक्ट कर रहा हूँ. कई सारे टीवी चैनल सुबह सुबह बताएंगे अच्छा आपका ये है, आपके इसके मूलांक के हिसाब से ये बनता है. आई वंस ट्राइड फॉर अ वीक कि चलो ये जैसा बताते हैं ना, लेट्स डू दैट. अगर ये बोलते हैं कि ये कलर लकी है तो आई यूज्ड टू पुट अ पेपर, कलर किया, पॉकेट में डाल के चला दिन भर. never did anything happen of that sort. साथ में से एक दिन हुआ होगा. I just wanted to ask you कि वो genuine है क्या और उसकी genuinity कितनी possible भी है. सर बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूँ मैं आपको. ये तो आपने बड़ा आसान बताया कि फेवरेट कलर को लेकर वो कुछ बोलते हैं.
एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा, ये तो मतलब टॉप मोस्ट जो चैनल्स हैं वो चलाते हैं, अगर थोड़ा सा बी ग्रेड चैनल्स अगर आप देखना शुरू करो ना, वो आपको बोलेंगे कि भाई ऐसा है, आज तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है फैंटा, ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक पीनी है, किसी को बोलेंगे भाई आज काली दाल बना दो, किसी को बोलेंगे आज पीला ये कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब समझ रहे हो, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। और लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं सनत, ये लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, ये सब बोलते ही नहीं है ऐसा। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, मेरे को बहुत सारे चैनल्स अप्रोच करते हैं, और मोस्ट ऑफ द चैनल्स को मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उनके पास पहले से ही प्री रिटन पूरा कंटेंट होता है। वो आपको बोलते हैं साहब यही बोलना है, यही पे। अब एक सोच के समझ के देखना सनत, जो लोग वहां पे बैठे होते हैं, कभी उनका ड्रेसिंग सेंस चेक करना, वो लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल वे में बैठे होते हैं, उनके पास बहुत सारा मतलब पहनने का ये वो। अब सोचो वो घर में नॉर्मली ऐसे नहीं रहते भाई, अगर आप उनसे मिलने जाओगे, अगर आप उनसे कंसल्टेशन, ऐसे ना आपको नहीं दिखेंगे वो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एक इमेज बने, और ये इमेज वो खुद से नहीं बनाते हैं, ये इमेज उनको एक कंटेंट प्रोवाइडर जो उनकी टीम होती है चैनल्स की, वो बताती है कि आपको भाई ये बोलना है, ये पहन के आना, काला पीला नीला पीला जैसा भी आपको पहन गया, थोड़ा मतलब समझ रहे ना कि चमक दमक सी लगे। इतना रुद्राक्ष पहन लेंगे भाई, इतना रुद्राक्ष, मतलब रुद्राक्ष इज अ वेरी पावरफुल थिंग इफ यू सी टू इट, इवन इन टर्म्स ऑफ वेदिक इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। इतना रुद्राक्ष पहनोगे तो नींद भी नहीं आएगी, एंड मोस्ट ऑफ देम नो दैट। So I know a lot of senior astrologers, and they sometimes say to me, Vishal, you are young and you don't know how it works. ये तो ऐसे ही चलता है भाई, आपको समझना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ देखो, अभी चलता तो आया ही हुआ है ना, बर्बाद तो कर ही चुके ना हम इतने अच्छे साइंस को। तो अब मैं तो नहीं करूंगा, मैं उसका पार्ट नहीं होना चाहता। आपको जो करना है आप करो, बट मैं वो ये अंधविश्वास फैलाना या फिर इसको ऐसा करना कि कुछ सीक्रेट है, ऐसा कुछ सीक्रेट है ही नहीं है। मतलब being an engineer, I learned it, and I have learned it very good. We have more than 10,000 clients outside India, and including India, we have more than 40,000 clients, and we are doing great. We are one of the best in terms of these things. तो उसके बाद भी हमारे पास कोई पाखंड नहीं है भाई। हम कभी किसी को ये नहीं बोलते ये करो वो करो, या फिर, और जनरल होरोस्कोप की जहां तक बात रही, देखो यार वो कंटेंट होता है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का। ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना दिन उससे, अब ये साइकोलॉजिकल है। देखो मैं आपको बताता हूँ सनत, अब दो तरह की जनरल होरोस्कोप्स होते हैं। एक जनरल होरोस्कोप होता है कि हम जैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि हम आपका ज़ोडिएक देखते हैं रोज का, हम जो डालते हैं, और उसमें अगर नेगेटिव भी है ना तो उसको ऐसा पाखंड की तरह नहीं बताते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आज दिख रहा है कि आज आपका कुछ फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड कुछ एक्सपेंस है, तो हम वहां पे ये नहीं बोलते कि ये करो वो करो, काला बिल करो, ये मंत्र पढ़ो, ऐसा करो, 4 बजे घर से निकलना, ये करना वो करना, जब पाखंड है भाई। तो हम क्या बोलते हैं सिंपली कि यार आज अपना जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन द राइट वे। तो हर चीज को पॉजिटिव बताने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलो एफर्मेशन है, जैसे सनद मैं आपको रोज बोलूं कि सुबह उठते ही खुद को ये बोलो शीशे में देख के कि आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन एंड व्हाटएवर आई विल डू आई विल बी डूइंग इट विद कॉन्फिडेंस। तो ये एक मैजिक पिल जैसा है, समझ रहे हो? इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है, लेकिन ये जादू करेगा अगर आप रोज ऐसा बोलते हो ना खुद को, अगर आप पॉजिटिव रखते हो। तो होरोस्कोप का जनरल होरोस्कोप अगर आप पॉजिटिविटी के लिए पढ़ रहे हो, इट्स वेरी गुड। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई भी होरोस्कोप या कोई भी पंडित या कोई भी XYZ इंक्लूडिंग मी, अगर आपको कभी लगे कि मैं आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपसे मतलब आपके डर का सहारा ले रहा हूँ, उन तीनों चीजों से दूर रहो, कोई फायदा नहीं है आपके लिए। ऐसी No, that is a very good tip because वो चीज मुझे लगती है लोग बहुत फॉलो करते हैं, but people who watch this, I really hope कि उन लोगों को मतलब जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए उतना अच्छा, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि reality is kind of very different from what you just see on those TVs and newspaper में आप डेली उठ के चेक करने लग जाते हो। अब सोचो, एक बात सोचो ना, वो जो जिसका भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल होरोस्कोप पढ़ रहे हो भाई, उसका घर आप तो फ्री में पढ़ रहे ना, आपने तो फ्री में पढ़ा, उसका पैसा कहाँ से आता है? उसका पैसा आता है टीआरपी से, जो आप वहां पे बैठ के देख रहे होते हो। टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर दे, you know it, right? It's kind of a business, you know it, and if you so if you can't understand it, I think it is not the problem of astrologer, it is the problem of you, simple as that. अगर वो मतलब ये काला पीला बोलते हैं, आप देखते हो, उसके बाद उसको करते हो, तो भाई आप ही तो प्रमोट कर रहे हैं ना उसको। Exactly. मेरे जैसा बंदा अगर आपको सटाक से आंसर देता है, बोलते नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सनत, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर आपने तो मेरे को कोई कुछ महंगा कुछ बताया ही नहीं, आपने तो मेरे को कोई पूजा नहीं बताई, आपने तो मेरे को ये नहीं बोला कि ये 5,000 मंत्र पढ़ो।
मैंने कहा भाई क्यों बताऊं मैं? बोले कि सर अब मैंने आपको फीस दी। मतलब उनको लिटरली चाहिए ही वही। और ऐसे लोगों को मैं सिंपली पहले ही हम एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर देते हैं, भाई हम खुद ऐसा नहीं करते, भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवान में विश्वास का मतलब ये नहीं पाखंड, वो बहुत अलग चीज होती है। और आप प्लीज हमसे ऐसा एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, आपको किसी और से करना है, वो जो कर रहे हैं मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता अगेन, बट हम ऐसा नहीं करते, हमसे तो नहीं होता। Simple. Right. That's very nice and genuine of you, and that is one of the reasons I was so attracted when we first connected on LinkedIn. I was like, I really want to talk to them because this is a new generation of astrologers. Something जो वो saffron पहनने के अलावा उससे आगे बढ़ के genuinely कुछ कर रहे हैं. Because India में the moment you want to become a Baba, all you do is get your hair long and wear a saffron. वही जो आपने बताया, रुद्राक्ष की 4-6 मालाएं पहन लो. You are true. All you have to do is you have to be a good memorizer, ताकि आप अच्छे से बैठ के 10 लेक्चर आपने पढ़ लिए, कथाएं याद कर ली. The next day you are having your कथाएं भी याद नहीं होती यार. मतलब फ्रेंकली मैं आपको बताऊं सनद, आप बहुत सारे लोग जितने भी आप जानते हो वो उनको संस्कृत में रट तो लेते हैं, रटपूत होते किधर, आप उनसे पूछो उनका मतलब भी नहीं पता होगा. और फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदास हैं, अभी वेदास में कोई चीज कही गई उस समय के लिए, वो अभी मतलब उसी समय में रह जाते हैं, उसको कन्वर्ट करने की भी नहीं सोचती करंट जनरेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे बोला गया कि भाई, जस्ट टेकिंग अ वेरी नेचुरल एग्जाम्पल, कि जो लेडीज हैं उस समय पर भाई जब भी उनका मेंस्ट्रुएशन का टाइम आता है उस समय आप पूजा वूजा ना करें, आप क्या बोलते हैं मंदिर से दूर रहें, किचन से दूर रहें. उसका कारण क्या था भाई? उस टाइम पे सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं था, और उस टाइम पे चाहते थे कि क्योंकि बहुत काम होता था, जानवरों का काम है, उसके बाद मतलब घर का इतना, घर कोई छोटा नहीं अभी के जैसा 1-2 बच्चों वाला घर नहीं होता था. हाँ, वो बिल्कुल जॉइंट फैमिली होता था, 50-50 लोगों का रोटियां बनाते थे और एक आदमी 20-20 रोटियां खाता था. ये उस समय की बात मैं आपको कर रहा हूँ. उस टाइम पे जो होता था तो वो चाहते थे कि यार इनको रेस्ट मिल जाए, तो वेदास ने बोला कि भाई इनको रेस्ट करने के लिए ऐसा बोल दो. और जो पूजा भी होती थी ना सनद, आज की तरह नहीं वो अगरबत्ती चला टन 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 किया चलो हो गया पूजा. प्रॉपर पूजा होती थी, पूरा मंत्रोच्चारण होता था, उसमें हवन होता था, रोज हवन होता था, और रोज की रोज उतने मंत्र और उतनी चालीसाएं और उतना सब कुछ पढ़ना होता था. तो उन सब से रिलैक्सेशन के लिए ये बोला गया. अभी क्या है, वो लोग अभी भाई सब कुछ सही है ना भाई, अभी तो इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया ना आपने. हाँ, तो वो सब चेंज करना पड़ेगा. अभी अगर आप नए करंट वर्ल्ड में जी रहे हो तो आपको वो सब समझना पड़ेगा कि उसका कारण क्या था पीछे. वो वही कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अतीत की पूंछ पकड़ के नहीं बैठ सकते आप. आपको कुछ, अगर आप आज की नई जनरेशन में जी रहे हैं तो आपको नई जनरेशन के लिए कुछ करना होगा. That's very true. इसी नई जनरेशन की एक सोच मैं आपको बताऊं. मैं और मेरे कुछ एक फ्रेंड्स का एक बार डिस्कशन हुआ कि यार अपन इंडिया में बहुत वास्तु मानते हैं, अपन घर बनवाते टाइम 10 लोगों से कंसल्ट करते हैं, राइट. एस्ट्रोलॉजर से तो मुझे लगता है जेन्युइनली कम करते होंगे, पड़ोसियों से बहुत ज्यादा करती है जनता. तो वास्तु एंड ऑल करके इंडिया में आप घर बनाते हो, बट बाहर के देशों में वी डोंट सी अ मुहूर्त फॉर गेटिंग मैरिड. दे गेट मैरिड व्हेनेवर दे वांट टू. उनके दादाजी की उस दिन बर्थ हुई थी तो उस दिन को उन्होंने स्पेशल ट्रीट करने के लिए शादी कर ली, irrespective of the मुहूर्त थिंग. घर बनाते टाइम दे हैव, गवर्नमेंट इज गिविंग देम हाउसेस irrespective of anything. कॉलोनी जैसे बनी है, घर का मुंह किस तरह से क्या है, इट्स ऑल देयर. दे डोंट बिलीव सो मच इनटू आर्ट शास्त्रा सो दैट उनको ये सब चीजें समझ आए. क्या उनके ऊपर फिर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? हम कहते हैं हमारे घर का मुंह गलत तरफ है इसलिए हमारे घर में सारी अशांति है. अगर उनका भी ऐसा होता है तो उनकी तो लाइफ नॉर्मल चलती है. So aren't they affected? क्या सिनेरियो है?